سامعین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی چاہنے والوں کو، لائیو آنے والوں کو اور محبت رکھنے والوں کو ہمارا سلام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تصوف کے چند اشعار کے ساتھ آج کے اس لائیو پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ اٹھتا ہوا ہستی کا پردہ نظر آتا ہے، اٹھتا ہوا ہستی کا پردہ نظر آتا ہے، جلوہ اب حقیقت میں جلوہ نظر آتا ہے۔ ہر قطرے میں دریا کی موجیں نظر آتی ہیں، ہر بندے کی صورت میں مولا نظر آتا ہے۔ اس صورت زاہد کے نقشے کو مٹا پہلے، پھر دیکھ تو خود میں کیا کیا نظر آتا ہے۔ کیا پوچھتے ہو ان کے جلووں کی کہانی، کیا پوچھتے ہو ان کے جلووں کی کہانی، ہم دیکھ نہیں سکتے اتنا نظر آتا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے اتنا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلووں کی کہانی اتنی وسیع ہے کہ ان کے جلووں سے ایک عالم آج بھی جگمگاتا نظر آتا ہے۔ آئیے آج ان کے جلووں اور کرامتوں سے روبرو ہونے جا رہے ہیں۔ ہم ٹوڈا رائسنگ، ضلع ٹونک، راجستھان کے رہنے والے صوفی پیر محمد صاحب رزاقی کے ساتھ میں، جنہوں نے ایک مدت تک خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ پچھلے جمعرات کو آپ کی ایک منقبت ہمارے اس پروگرام کے ذریعے پیش کی گئی تھی۔ آئیے آج ہم ان سے روبرو ہو کر خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کرامتوں اور تاثرات سے آشنا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم ہیں ٹوڈا رائسنگ، ضلع ٹونک، راجستھان سے صوفی پیر محمد شاہ رزاقی صاحب کے ساتھ میں۔ آپ ہمارے حضرت قبلہ کے خاص مریدین میں سے ایک ہیں اور حضرت قبلہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ آپ ہمارے حضرت قبلہ کے متعلق اپنے تاثرات بیان کریں گے۔ حضرت قبلہ سے آپ کی پہلی ملاقات کب، کہاں، کیسے ہوئی، کیسے حضرت قبلہ کی صحبت میں آپ آئے؟ میں حضرت قبلہ سے سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی وہ دوسہ شریف میں ہوئی، اور ہمارے پیر بھائی ہیں صوفی حمید بھائی ٹورائسنگ والے، وہ مجھے دادا میاں کے عرصوں میں وہاں لے کے گئے اور انہوں نے میری میاں سے ملاقات کروائی، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ چلیے ہمارے دادا میاں کے عرص ہیں وہاں پر، ہم آپ کو ہمارے پیر صاحب سے ملاقات کراتے ہیں۔ تب میں نے پہلی مرتبہ میاں سے وہاں دیکھا، تو اس وقت میں کیا ہے کہ میاں کے کمرے وغیرہ بنے ہوئے نہیں تھے، ٹینٹ لگتے تھے چوطرف آستانے کے اندر، اور میاں ایک ٹینٹ کے اندر تشریف فرما تھے۔ کافی لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو جیسے ہم نے میاں کو مالا وغیرہ پہنائی اور جا کے ہم بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں ہمارے حمید بھائی نے کہا کہ ایسا ہے کہ حضرت ایسا ہے کہ ان کا نام ٹوڈا رائسنگ کہیں گے اور یہ آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ تو میاں نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ آپ وضو بنا کے آئیے۔ میاں نے مجھے وہاں بیعت کیا۔ بیعت کرنے کے بعد میں میاں نے مسکرا کے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت میرا نام پیر محمد ہے۔ تو آپ نے مذاق میں کہا کہ بھائی سبحان اللہ، آپ تو بنے بنائے پیر ہیں۔ جی سبحان۔ تو وہاں میاں سے میں بیعت ہوا، اور اس کے بعد بیعت ہونے کے بعد مجھے میرے قلب کو بڑا سکون نصیب ہوا، اور میں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میری زندگی کی شروعات جو ہے وہ آج سے ہوئی ہے۔ جی، ایک نئی زندگی کی شروعات، ایک نئی زندگی کی جو شروعات ہے وہ آج کی تاریخ سے ہوئی ہے۔ میں نے ایسا محسوس کیا۔ ملاقات آپ کی کب، کہاں، کیسے ہوئی، اور کس طرح سے آپ کنٹینیو حضرت قبلہ کی صحبت میں آئے؟ جی۔ دوسری ملاقات میری ہوئی اویکا نگر میں۔ عرفان بھائی ہے ٹوڈا رائسنگ والے، صوفی عرفان بھائی، وہ ہمارے پیر بھائی ہیں۔ وہ اور ہم دونوں موٹر سائیکل سے مالپورہ گئے، مالپورہ سے اویکا نگر گئے۔ ہمیں پتہ چلا کہ میاں آئے ہوئے ہیں،
वहाँ सूफी इसरुद्दीन जी, उनके घर पे हल्का जिक्र था, और वट्टाब सलीम गौरी साहब वगैरह वो लोग भी आए हुए थे वहाँ पर। रात को हल्का जिक्र हुआ, महफिल हुई। फिर मियाँ को हमने कहा कि मियाँ ऐसा है कि आपसे हमसे हमारी गुजारिश है कि आप टोडा राय सिंह तशरीफ लेके चले। तो मियाँ ने कहा देखेंगे कभी, जी आएंगे कभी, टोडा राय सिंह भी आएंगे, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैंने कहा मियाँ ऐसा नहीं है, आपको हम लेके चलेंगे साथ में। तो मियाँ ने कहा कि ऐसा है, हम रोडवेज से आ रहे हैं, आप चलो टोडा राय सिंह, चल के तैयारी करो, हम शाम तक पहुंच जाएंगे। तो मियाँ 4 बजे वहाँ टोडा राय सिंह पहुंच गए रोडवेज से। फिर हम मियाँ को गाड़ी में बिठा के और इरफान भाई के घर पे ले गए, वहाँ सलीम साहब वगैरह भी थे। मियाँ ने कहा भाई ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम मत रखना, अब पहली बार आ रहा हूँ मैं, तो आप क्या है कि हल्का जिक्र का प्रोग्राम रखना, छोटी महफिल हो जाएगी, वकील साहब वगैरह को इनको मैं बोल दूंगा, वहाँ पर छोटी मोटी महफिल हो जाएगी आराम से, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर मियाँ वहाँ तशरीफ़ लाए। कई लोग मियाँ से वहाँ भेंट भी हुए, जैसे बूढ़ा बाबा आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी उसी दिन मियाँ से भेंट हुए। कालू भाई थे, और लोग भी भेंट हुए वहाँ, और इरफान भाई के परिवार वाले भी वहाँ मियाँ से भेंट हुए। कैसा लगता था आपको मियाँ की सोहबत में रहकर? मियाँ के साथ जो जिक्र अज़कार की महफिलें होती थी, इन सब को अटेंड करके आपको कैसा महसूस होता था? जिक्र अस्कार के बारे में तो मियाँ फरमाया करते थे कि भाई देखो ऐसा है कि सिलसिले के 5 काम है। मियाँ ने एक मर्तबा मुझसे, बेटा ऐसा है सिलसिले के 5 काम है, शब बेदारी, लंगर जारी, हल्का जिक्र और इसाले सवाब, बुजुर्गान दीन को पहुंचाना और दीन की तबलीग करना, ये सूफियों का मेन मकसद है। और हम जो ये जिक्र करते हैं बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हल्का जिक्र जो करते हैं, इसका मामला ऐसा है कि कपास का चाहे कितना ही बड़ा ढेर हो, पहाड़ की तरह हो, तो मियाँ ने मिसाल दी मुसीबतों की। इंसान की जिंदगी में जो मुसीबतें चाहे वो पहाड़ के बराबर हो, लेकिन मियाँ ने मिसाल देके बताई कि भाई जैसे कपास का ढेर कितना भी हो, उसको माचिस की एक तिल्ली बता दो, जल के राख हो जाएगी वो। जी तो इस तरीके से ये जिक्र जो है ना इंसान की जिंदगी में काम करता है, और जिक्र की बहुत बड़ी फजीलत है, ये बात है। जी, कुरान हदीस में भी कई जगह जिक्र, हाँ कुरान में आया है ना, कुरान के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फज़कुरूनी इज़कुरकुम वज़कुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मेरे बंदो तुम मेरा दिल में जिक्र करो, तो मैं भी तुम्हारा जिक्र दिल में करूंगा, और तुम मजमे में अगर मेरा जिक्र करोगे, हल्का जिक्र करोगे, ज्यादा लोगों की तादाद में अगर मेरा जिक्र करोगे, ग्रुप में करेंगे, ग्रुप में अगर मेरा जिक्र करोगे, तो मैं तुम्हारा जिक्र फरिश्तों के मजमे में करूंगा। और एक जगह ये भी आया कुरान में, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करने से दिलों को सुकून मिलता है। जी बेशक। तो मेन मकसद ये है कि हमारा मकसद जो है ना मेन, कई लोग क्या है कि देखो अलग अलग आदमी का मामला है, दुनियावी मामला भी होता है, अलग अलग सोच है, अलग अलग सोच है, लेकिन हमारी जो मेन, जहां तक मैं समझता हूँ, ये जो सूफियाना लाइन है, बुजुर्गों की लाइन है, ये दुनिया तो इसके कदम में अपने आप आ जाती है, दुनिया मांगने की जरूरत नहीं है। जहां आदमी एक कामिल बुजुर्ग से बैत हो जाता है, फिर उसको दुनिया की तमन्ना नहीं रखना चाहिए। दुनिया तो बुजुर्गों की गुलाम है, इसकी कोई ज्यादा कोई बड़ी मिसाल नहीं है। बाकी ये मैं जरूर कहूंगा कि आखिरत बन जाए, आदमी की सोच ये होनी चाहिए कि मेरी आखिरत बन जाए, मेरी आखिरत संवर जाए और मेरी जिंदगी संवर जाए, ताकि अल्लाह तबारक ताला के दरबार में हाजिर होकर मैं जैसे आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये एक दुनियावी इंटरव्यू है। आदमी कब्र की मंजिल के इंटरव्यू से पास हो जाए, मैदान अशर में जो इंटरव्यू होगा उससे पास हो आदमी, ये बहुत जरूरी है। और आदमी के लिए बेत होना बहुत जरूरी है। सिजरे के अंदर भी मियाँ ने लिखा है, और सिजरे में कुरान की आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह
वबतु इलैहि जाइदु फी सबीलिल्लाहि लकुम तुफलिहून। ए ईमान वालों, डरो अल्लाह से और उसकी राह में वसीला तलाश करें, यानी एक कामिल बुजुर्ग की तलाश करें और मेरी राह में मुजाहिदा करें ताकि तुम फला पाओ, यानी मेरे यहाँ मेरे नजदीक बख्शे जाओ। जी बेशक, सुभान अल्लाह। असल कामयाबी इसी में। बेशक बेशक। ऐसी कौन सी चीजें थी जिन्होंने आपको मियाँ की सोहबत में रहने पे मजबूर किया, मतलब आप खिंच के मियाँ की सोहबत में आने लगे? जी। मियाँ, मेरे एक शौक था, जो कोई इस बात का मेरे दिल में था कि हमारे सिलसिला टोडा रायसिंह में क्या है कि ज्यादातर हमारे गांव में टोडा रायसिंह में तबलीग की जमात का मामला बहुत जबरदस्त है, और वहां पर मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि कम से कम यहाँ पर एक भी मुरीद नहीं है मियाँ का, तो ज्यादा से ज्यादा मियाँ से लोग जुड़ना चाहिए। मेरा एक ही शौक था कि मैं रीड करता था सिलसिले के बारे में, उनको सिदरा पढ़ के सुनाता, उनको हर चीज बताता, भाई इसमें कहाँ शिरक है, कहाँ बिद्दत है, आप लोग इस तरीके से बात करते हो। एक मरतबा आप हमारे हजरत से मिलिए, आप उनसे मुलाकात कीजिए, आप आइए, बैठिए आप, तब आपको पता लगेगा सिलसिला क्या चीज है। तो मैं लोगों को ला के मियाँ टोडा रायसिंह में भी काफी लोगों को सिलसिले से जोड़ा, और एक गांव है ग्राम सालग्यावास है, वहां भी सुब्राती भाई थे हमारे पीर भाई, उनके परिवार को भी हमने जोड़ा। मियाँ 4-5 साल उसने जोड़ा, उन लोगों ने कैसा महसूस किया? आज सब कुछ उनका अल्लाह पाक ने बुजुर्गों की दुआ से सब कुछ संवार दिया, दुनिया और आखिरत बन गई उन लोगों की। जी। कोई परेशानी नहीं, अल्लाह के हुक्म से, सब मियाँ की दुआ है। जी। जी। हजरत किबला की ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आपको पसंद आती थी? अब मियाँ के बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको। आज मैं जहाँ तक समझता हूँ, मियाँ के 1 लाख मुरीद हो चाहे 2 लाख हो, कमो बेश, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सिलसिले के अंदर आप चाहे उनके मुरीद से मिलिए, चाहे उनके खुलफाए राशिदीन से बात कीजिए, किसी से भी आप बात करें, चाहे वो मुरीद भी नहीं है, मियाँ से अगर 10 मिनट जिस आदमी ने मुलाकात की, चाहे वो ईमान वाला हो चाहे वो गैर ईमान, आदमी एक बात बोलेगा, आप उसको अलग ले जाके बात करें तो वो ये कहेगा कि मियाँ हमारे गांव में, हमारी बस्ती के अंदर जितना दिल से मुझे चाहते थे किसी को नहीं चाहते थे। तो मियाँ ने मिसाल कायम कर दी। मियाँ ने आज हुकूमत करने वाले लोग जो है ना, प्रशासन पे करते हैं, रियाया पे करते हैं, पब्लिक पे हुकूमत करते हैं, लेकिन मियाँ ने, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि दुनिया के अंदर लोगों के दिलों पे राज किया। हमारे दिलों पे हुकूमत जो थी ना, वो मियाँ की थी। और ऐसे फितना और फसाद के दौर में भी आज बददीनी का आलम है पूरी कायनात के अंदर, अपन देख रहे हैं क्या हालात है। ऐसे हालात के अंदर अपनों में और गैरों में, आज मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर हमारे पीरो मुर्शिद पहले बुजुर्ग थे आज के दौर में, जिन्होंने अपनों में और गैरों में कलमा तौहीद की सदा को बुलंद किया। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद की सदा को आपने बुलंद किया, और हर जगह इस जिक्र इलाही पे मियाँ ज्यादा जोर देते थे। और मियाँ ये फरमाते थे, भाई देखो ये जो खाना पीना है ना, ये इतना खर्चा मत करो, आप लोग खर्चा इतना करो जितना अपना पॉकेट अलाउ करता है, और दाल रोटी बनाओ, अपने कोई खाने पीने का शौक नहीं हमारे। आप तो क्या है कि मेन चीज पे ध्यान दो, हल्का जिक्र, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन सरबलंद दुनिया में कैसे हो, इस पर मियाँ का फोकस रहता था हमेशा। और मियाँ ये भी फरमाते थे, अगर आप 500 रुपये कमाते हो 300 रुपये खर्च करो, अगर 500 रुपये कमाते हो 700 रुपये खर्च करोगे तकलीफ में आ जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। तो मियाँ हमेशा ही चाहते थे कि मेरा मुरीद कैसे आगे बढ़े दुनिया में। दीनी और दुनियावी दोनों तरबियत आपके साथ साथ, दोनों साथ साथ आप तरबियत करते थे। आप उसको पूछते थे, भाई आपके काम धंधा क्या है, कोई बात तो बताओ, काम नहीं कर रहे हो तो काम करो, किसी धंधे से जुड़ो, जब आपके पास पैसा आएगा तो परिवार भी आराम में होगा, आप लोग भी सुखी रहोगे, और हम लोगों को भी आप बुलाओगे तो सारा प्रोग्राम ढंग से होगा। ऐसी बात नहीं, दीन के काम में भी अच्छे तरीके से हिस्सा लोगे, अच्छे तरीके से आप हिस्सा ले सकते हैं।
ये बात है। मियाँ की कोई करामत और मियाँ के अखलाक के बारे में? जी, टोडा राइसिंग आए थे मियाँ टोडा राइसिंग आए, रात को हल्का जिक्र हुआ, महफिल हुई, सुबह आप फ्रेश होके नहा धो के कंप्लीट होकर के बैठे थे गद्दी पे। तो उस वक्त में अमित भाई को बुलाया, आपने बुला करके कहा भाई आपके भाई के रिश्ते का क्या हुआ? कि हजरत हो गया रिश्ता मेरे भाई का। कहाँ हुआ? बोला बेरी गांव है, बेरी गांव के अंदर हुआ है हजरत। और लड़की क्या काम करती है? बोला मियाँ लड़की तो पढ़ी लिखी है। बोला जी मियाँ BSc नर्सिंग करी हुई है लड़की। अच्छा कौन कौन गए थे सगाई में? बोला मियाँ ये नेताजी भी गए थे, हमारे परिवार वाले भी थे, सभी लोग थे हम। अच्छा BSc नर्सिंग करी हुई है। बोला तो मियाँ ने और मर्दा ऊपर घुमाई आसमान की तरफ, खुदा की तरफ आप मुतवज्जो हुए और उसके बाद आपने आंख खोल दी। आंख बंद करके ऊपर देखा मियाँ ने, देख करके आपने आंख खोल दी वापस। फिर फरमाया इधर आओ अमित भाई। बोला लड़की तो टीचर है। मियाँ ऐसे कैसे हो सकता है? कि बिल्कुल हम बोल रहे लड़की तो टीचर है भाई, आप मालूम करो कौन सी लड़की देख के आया। तो आप अमित भाई क्या है घर पे गए, घर पे जाने के बाद उनके वालिद साहब से आपने कहा कि हमारे पीर साहब कह रहे हैं कि लड़की तो टीचर है। अच्छा कहा? अरे बोला वो बताया था बच्ची तो वो काई करेड़ी थी, मैं तो अनपढ़ आदमी छू, पढ़े लिखे छू कौन है, अब ते समझो तो पढ़े लिखे लोग काई कभी वो तो नर्सिंग के लिए किया जा, कभी फोन लगाओ। तो BI जी को वापिस फोन लगा और पूछ गए, तो फिर मालूम किया तो उन्होंने कहा BI जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजी बोला आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ मैं अमीर साहब। कभी बोलो। कभी वो जो बच्ची जिसकी बात चल रही थी ना सगाई की, मेरे 2 लड़कियों ने क्या करा, एक तो आपकी जिनकी सगाई हुई उस लड़की ने और एक बच्ची और थी, उन्होंने फॉर्म भर दिया। जो उन्होंने क्या है एक बच्ची का नंबर तो आ गया, इसमें ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी बन गई, और वो आप जिसके शादी की बात चली ना वो लड़की का मास्टर में आ गए, टीचर हो गई वो लड़की। बोला अच्छा। बोला तो अमित भाई तो बिल्कुल चुप हो गए, जवाब ही नहीं लगा अमित भाई से। जब वापस मियाँ के पास गए तो हम मियाँ की सूरत देख रहे बैठे बैठे क्या ये हुआ। फिर मियाँ ने कहा कि ऐसा है कि भाई अपनी ये जो पैरवनी है ना इसको समेटो, हम कोटा जाएंगे। और क्या साधन है कोटा के लिए? मैंने कहा मियाँ ये गाड़ी ले आएगा अमित भाई का भाई, छोटे बाबू देंगे। तो मारुति में बैठ गए, बाबू भाई थे, मैं था और हमीद भाई थे। मियाँ बैठ गए आगे, बीसलपुर डैम पे होकर के हम देवली पहुंचे। देवली पहुंचने के बाद में मियाँ ने मुझसे कहा कि ये थर्मस है, इसमें पानी भर के ला। मैंने कहा लिया तो मियाँ लाओ मेरे को। मैंने कहा पानी भी लिया हूँ मियाँ आपका। हाँ लिया, कोई बात नहीं। तो मैं पान वाले के जाके खड़ा हो गया, मैंने पान लगाओ, तो थर्मस को वहीं रख दिया मैंने, लाके मियाँ को पान पकड़ा दिया। फिर वो इरफान साहब के रिश्तेदार है वहाँ, फकरुद्दीन जी देवली वाले, उन्होंने कहा अरे तो पीर साहब है 200 वाले, पीरू जी आप ऐसा है कि इनको अपनी दुकान लेके आओ। मैंने कहा आप ही बात करो मियाँ से। उन्होंने जाके बात करी कि हजरत 2 मिनट के लिए आप दुकान तशरीफ लेके आए। वो आने के बाद मियाँ जैसे आकर के बैठ गए, वहाँ बिछाइत कर दी, मियाँ बैठे। उन्होंने ठंडा उंडा पिलाया मियाँ को। तो उनके एक लड़का था, वो तुतला के बोलता था, उसके रिश्ते में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो वो पीछे पीछे खड़ा था सबके। तो एक गिलास में ठंडा पकड़ा है मियाँ को, तो मियाँ ने 2 घूंट पी के और बोला ये बच्चा खड़ा है ना पीछे, इसको आगे बुलाओ। मेरे से कहा इसको बुला आगे। मैंने आगे बुलाया, मैंने अभी मियाँ बुला रहे थे। मियाँ ने उस लड़के को पकड़ा दिया वो गिलास, ये पी लो। कहते मियाँ इसका ये मसला। फकरुद्दीन जी ने कहा हजरत आप दुआ करें इस बच्चे का कहीं रिश्ता वगैरह हो जाए, क्योंकि तुतला के बोलता है, इसलिए थोड़ी रिश्ते में परेशानी आ रही। तो मियाँ ने उसके सर पे हाथ रखा और मियाँ ने मुस्कुरा के कहा कि भाई ऐसा है कि हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, आप मस्त रहो, दुआ करेंगे। तो उस लड़के का रिश्ता चंद दिनों बाद में रिश्ता हो गया। बहुत बढ़िया लड़की आई उसके घर में और बहुत खूबसूरत दुल्हन आई उसके, और
बहुत ही बढ़िया काम हुआ उनका मियाँ की दुआ से। फिर मियाँ का मेरे पास फोन आया कुछ दिनों बाद में, इरफान भाई के पास, मेरे पास नहीं आया, इरफान भाई के पास आया फोन कि भाई नेताजी को लेके आप वहाँ आओ, मेड़वा महफिल है सरापत माट साहब के घर पे। जब हम गर्मी में वहाँ पहुंचे मोटरसाइकिल से, तो मियाँ बैठे थे कमरे में, तो मियाँ ने कहा ओहो आइए, मियाँ को हमने माला वाला पहनाई, आ गए आप लोग, आप पानी वानी पियो। तो मियाँ के पास थर्मस रखा हुआ था, गिलास उठाया, उठा करके मियाँ ने मेरे को पानी पकड़ाया। मैंने कहा मियाँ मैं ही पी लूंगा, आप, अरे कोई बात क्या, बैठो आप आराम से, गर्मी में आए आप क्यों परेशान हो रहे। फिर कहा और लो, हाँ। तो फिर मेरे को थर्मस वाली चीज जो है ना दिमाग में आई। मैंने कहा मियाँ ने जो थर्मस अपन को दिया था वो तो वही भूल गए। मैंने कहा हजरत वो आपका थर्मस वो पान वाले के मैं भूल गया हजरत। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात। आप अखलाक की मतलब एक बहुत बड़ी बात थी कि मतलब किस कदर आला अखलाक थे आपके, कि इतना बड़ा दिल था कि उस थर्मस का जिक्र तक नहीं किया जो आप वहाँ भूल गए थे। बिल्कुल जिक्र नहीं किया मेरे जी। बस वो जो पानी पिलाया ना 2 मरतबा, उसी से मुझे याद आई वो चीज, लेकिन मियाँ ने आगे होकर के उसका जिक्र नहीं। सुभान अल्लाह। मियाँ से मिलने से पहले आपके सिलसिले के मुतालिक क्या ख्यालात थे, और मियाँ के मिलने के बाद उसमें क्या चेंजेज आए? मियाँ से मिलने के पहले तो आप जानते हो हम यही नहीं समझते थे कि दुनियादारी क्या है, दीन क्या है, मामला क्या है क्या नहीं है। इतना मामला था। हम तो ज्यादातर क्या है कि मैं शुरू से मेरे पॉलिटिक्स में राजनीतिक शौक था मेरे शुरू से ही, राजनेताओं के साथ रहने का। लेकिन ये है कि एक नेता को भी आपने सूफी बना दिया, ये भी एक ख्यालात में चेंज आना ही है। चेंज आना है जी। बाकी वैसे मैं तो बिल्कुल आप जानते हो कि वही कुर्ता पजामा जैकेट पहनना और नेताओं के साथ टूर पे रहना, ज्यादातर 20-25 साल से मैं जुड़ा रहा उन लोगों से भी बराबर कंटिन्यू, और काफी लोगों के साथ रहा मैं राजनीति में भी। बाकी एक कि वो सियासत थी, ये सियासत नहीं है जी। इसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपकी पर्सनल जिंदगी में, निजी जिंदगी में क्या बदलाव महसूस किया आपने? पर्सनल जिंदगी के अंदर तो मैंने ये महसूस किया है कि इंसान अगर मियाँ के बताए हुए रास्ते पर अगर चले तो मैं समझता हूँ कि एक रास्ते का पत्थर भी हीरा बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और मियाँ एक आम आदमी नहीं थे, मियाँ साधारण आदमी नहीं थे। ये बात मैं कहूँगा कि मियाँ की तरफ जब आदमी नजर भर के देखता था ना तो पत्थर का दिल भी आपके सामने मोम होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब ये दुनिया देखो, दुनियादारी का जो काम है, कारोबार है, धंधा है और है, जिंदगी में देखो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी चीज हम मियाँ पे डाल दें वो भी गलत है, नहीं है समझ में। जिंदगी में बहुत आदमी के जीवन में क्या मालूम कितने उतार चढ़ाव आते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। बाकी ये मैं कहूँगा कि मियाँ अगर सामने बैठे हों और आने महसूस करे कि मेरा पीर मुझसे बहुत दूर है, तो वो ये मान के चले कि मियाँ सामने नहीं बैठे फिर उसके जी, वो ये भी मान ले फिर अपने दिल में कि उनका पीर यमन में बैठा है, यमन में है वो। और पीर अगर यमन में हो और आदमी ये तस्वुर करे कि मियाँ मेरे साथ है, मेरे साथ 24 घंटा मेरे साथ है, मेरे पीरो मुर्शिद मुझसे दूर नहीं है, यानी पीर का मामला एक रूह जैसा होता है जी, रूहानियत का रिश्ता होता है। और रूह अगर इंसान की बॉडी से जुदा हो जाए तो उसका वजूद दुनिया में कायम नहीं रह सकता। अगर आदमी ये मानता है कि मेरा पीर यमन भी है, तो ये मानकर चलो कि वो 24 आवर्स मेरे साथ है, तो ये मानकर चलिए कि वो यमन में बैठा हुआ है बुजुर्ग आपका, तो वो आपके साथ है जी। ये आदमी का ख्यालात होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने भी कुरान में फरमाया कि मैं अपने बंदों के
चाहने वालों के शेर अक से भी करीब हूँ, यानी गले की जो रग है इससे भी ज्यादा नजदीक हूँ। तो पीर का मामला ऐसा है कि ये तो रूह है। रूह अगर आदमी की जिस्म से जुदा हो जाए, मैं जहाँ तक समझता हूँ इंसान का वजूद दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। मुरीद होने के बाद, सिलसिले में दाखिल होने के बाद मियाँ से आपको कोई नसीहत, कोई प्रेरणा? नसीहत प्रेरणा यही मिली मियाँ के सामने कि इंसान को जो है ना बड़ी सादगी से रहना चाहिए, गमखोर बन के रहना चाहिए और अपने आप को इंसान कम, अपने पीर को आला माने। और ये मामला ऐसा है कि जितना आदमी अपने आप को छोटा मान के चलेगा, अल्लाह तबारक ताला उसको इतना ही आगे बढ़ाता है बुजुर्गों की दुआ से, और पीर की नज़र भी उस पर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने ये भी सिलसिले में देखा है कि जिन लोगों ने मुरीद थे उसके बाद उनको खिलाफत से भी मियाँ ने नवाजा। खिलाफत मिलने के बाद उन लोगों ने समझा कि हम तो मियाँ से भी एक उंगल आगे बढ़ के बात करें, एक कदम आगे चल के बात करें। तो सिलसिले में देखते देखते उनका मामला जो है, जैसे सूरज अस्त हो जाता है ऐसे उन लोगों का सूरज गुरफ हो गया। ये भी मैंने देखा है मेरी आंख से, मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है। और जिन लोगों ने ये समझा कि हम पहले भी कुछ नहीं थे, आज भी कुछ नहीं, ये जो कुछ है ये सब आपके करम की बात है, हमारा काम तो केवल सिलसिले का काम करना है, लोगों की खिदमत करना है, लोगों को सिलसिले से जोड़ना है, हमारा मकसद दुनियादारी नहीं है। तो उनको अल्लाह पाक ने बहुत चमका है, बुजुर्गों की उन पर नज़र भी रही और उनका सिलसिले में भी काफ़ी अच्छा मकाम उन्होंने हासिल किया, ये बात ज़रूर है। सुभान अल्लाह। बेशक हज़रत से बैत होने के बाद, मुरीद होने के बाद आपको सिलसिले से कोई जिम्मेदारी मिली? बैत होने के बाद में कई लोग, देखो ऐसा है कि ऐसी भी दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि हम इतने वर्षों से मुरीद हैं, लेकिन मियाँ ने हमको इजाज़त खिलाफत दी नहीं। आज दिन तक हमको खिलाफत क्यों नहीं मिली? क्या बात है? हमसे जो बाद में आए उनको खिलाफत मिल गई, 7 महीने बाद ही उनको खिलाफत मिली। किसी को ये तो सरकारों की नाजिश की बात, ये चलता है लोगों के दिमाग में, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में ऐसी दिमाग में नहीं रखी और रखना भी नहीं चाहिए। ये बुजुर्गों का मामला है। जैसे हमारे जूने शरीफ के अंदर बाबू भाई साहब थे, उनके भाई थे रमजानी भाई, उनको वो बताते हैं कि उनके बारे में लोग बताते हैं आज भी कि उनको रात को ख्वाब आया और एक बुजुर्ग की उनको बशारत हुई और उन्होंने ये हुक्म किया उनको कि जो दीदार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में फजर की नमाज के बाद ही जो भी आपको मिल जाए आप उन्हीं से मुरीद बन जाइए। तो जैसे रमजानी भाई सुबह गए फजर की नमाज के बाद आस्थाने में, तो मियाँ वहाँ खड़े थे आस्थाने के अंदर। मियाँ से वो बैत हुए, बैत होने के बाद घर पे आए, 2 घंटे बाद में वापस बुला लिया और मियाँ ने उनको खिलाफत से नवाज दिया। जी, ये बुजुर्गों की नवाजिश है, कब किस पर कैसे नजर हो जाए। बेशक मैंने एक लाइन ये भी बोली कि इसमें सियासत, ये दीन है, इसमें सियासत नहीं है। इसमें क्या है कि दिल लगाने वाला इंसान पास है और दिमाग जो लगाएगा ना वो फेल हो जाए। क्योंकि ये इस्लाम की तवारी गवाह है कि सहाबा इकराम कमोबेश 1,24,000 जितने भी दुनिया में तशरीफ लाए उन्होंने दिल लगाया, बुजुर्गों ने अपने पीरों मुर्शिदों से दिल लगाया तो पास हो गए, और जिन्होंने दिमाग लगाया वो फेल हो गए। एक मर्तबा मियाँ साल के आवास के अंदर सुब्रती भाई साहब के घर पे बैठे, मियाँ अकेले बैठे हुए थे रूम के अंदर। मैं मियाँ के पास पहुंचा, मियाँ ने मेरी तरफ देखा, देख करके फरमाया, अरे लोग आते हैं मेरे पास, वो क्या डिमांड रखता है, वो क्या डिमांड रखता है, आप भी तो कुछ बोलो। आपने कभी जिंदगी में मुझे कुछ नहीं कहा, आपको क्या चाहिए बेटा? मैंने आपसे फरमाया, आपको क्या चाहिए बोलिए आप। मैंने हज़रत मुझे आप चाहिए। सुभान अल्लाह। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कहा मेरे को आप चाहिए। और मैंने कहा सरकार आप सलामत रहें और
जिनको अपना पीरो मुर्शिद चाहिए उसको कायनात में कुछ नहीं चाहिए, आपकी दुआ चाहिए मियाँ मेरे को, बेशक, कोई बेशक। तो ताज नहीं चाहिए, ये बात है। जी। मियाँ की कोई ऐसी बातें जिन्होंने अपने जहन को हिला दिया, मतलब ऐसी कोई करामातें? जी। हम टोडा राइसिंग में बैठे थे होटल के ऊपर, इरफान भाई हम दोनों चाय पी रहे थे, तो इरफान भाई के पास में मियाँ का फोन आया, क्या इरफान भाई? मैं टोडा राइसिंग हूँ। अच्छा, बोला आपके पास में जो बैठे हैं ना उनको फोन दो। अच्छा। पास में कौन बैठे हैं आपके? क्या बैठे हैं? नेताजी। हाँ, इनसे बात करो। तो मियाँ ने मेरे को कि यार मियाँ आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे दो। मैंने फोन पे बात करी, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत, कदम बोसी अर्जो। बोला खुश रहो भाई। मियाँ ने सलाम का जवाब दे के फरमाया कि खुश रहो। ऐसा है कि आप कल देवली आ जाओ, अय्यूब बाबा के यहाँ पे प्रोग्राम है और सब लोगों को बोल देना और सबको लेके आना, मोरा बाबा को भी बोल देना। मैंने कहा बोल, मैंने सबको बोल दिया। साल के बाद भी मैंने खबर करी तो सब लोग वहाँ प्रोग्राम में पहुँच गए अय्यूब बाबा के यहाँ। और इरफान भाई हम दोनों ने ये तय किया कि भाई ये लोग गाड़ी से, इनसे कार से जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपन मोटरसाइकिल से चलते हैं। तो बूढ़ा बाबा को हमने साथ बिठाया। मैंने कहा इनके पास साधन नहीं है, इनको साथ लेके चलेंगे। हम तीनों पहुंच गए वहां पर। पहुंच गए, मियाँ को हमने माला वाला पहनाई, नजराना पेश किया, बैठ गए। तो मियाँ ने सबसे पहले इरफान भाई को बुलाया, इरफान भाई इधर आओ, कितनी बच्चियां हैं आपकी? यूं कहा हजरत मेरे 8 हैं। ओहो माशाअल्लाह, आपके 8 हैं। कितनी की शादी हुई? बोला मियाँ 4 की कर दी, 4 की बाकी है। बोला सबकी एक साथ कर दो, बार बार खर्चा करने में अच्छी बात नहीं, एक साथ करो सबकी, एक साथ इस काम से फ्री हो जाओ आप। चलो बैठो उधर। बुरा बाबा आप इधर आओ। बुलाया बुरा बाबा, और सुनाओ क्या हाल चाल है? बोला मियाँ ठीक है। मियाँ मेरे एक परेशानी है। बोला क्या है? बोला ऐसा है कि मेरे बेटे की बहू जो है ना, वो रूस करके शाहपुरा बैठी हुई है और आ नहीं रही है। मैं लेने भी गया तो मेरी बेटे की बहू की जो है ना वो अम्मी, उसका थोड़ा मिजाज गर्म है, तो वो क्या है कि मियाँ मेरे को गाली गलौज करती है, उल्टा सीधा बोलती है और भेज ही नहीं रहे। अच्छा अच्छा ठीक है, आपके रिश्तेदार का दिमाग गर्म है। बोला ठीक, कोई बात नहीं, ठंडा हो जाएगा तो क्या हो गया, दिमाग ठंडा हो जाएगा उसका, दुआ करेंगे भाई, ठीक है ना, आप बैठो। फिर मुझे बोला इधर आओ। मतलब ये कि आप हर मुरीद की मतलब हालचाल से मतलब वाकिफ रहते थे। हाँ। दुआ करेंगे इंशाल्लाह। फिर मुझे बुलाया, बुलाकर कहा कि आपके बच्चे के रिश्ते का क्या हुआ? मैंने कहा मियाँ हर मामले में पास हूं मैं, रिश्ते नाते के मामले में फेल हूं। क्या ये काम मुझसे नहीं होता है हजरत? बोला आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अरे राजस्थान में देश वालियों की तादाद बहुत है भाई, ट्राई आप करो, आप जाओ, बातचीत करो, दुआ हम करेंगे, है ना, कोशिश आप करो। मैंने कहा मियाँ आप कुछ भी कहो, ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे पागल है, दिमाग नहीं रखता, वो बेटी के लखन है, तेरे को अकल नहीं है क्या? हम बोल रहे हैं वो काम करो भाई, आप तलाश नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने कहा आप करोगे, आप जाने और वो बच्चा जाने। तो मियाँ क्या कि गजरा पहन के बैठे हुए थे, बहुत बड़ा गजरा था वो गले में। तो मियाँ ने कहा हम करेंगे। बोला इधर आओ आप। मियाँ ने पास में बुला के ऐसे करके ताज पे से गजरा निकाला और मेरे गले में डाल दिया, और फिर मियाँ ने थप्पी लगा के बोला चल उधर बैठो एक तरफ, दुआ करेंगे। फिर रात को हल्का जिक्र हो गया, महफिल हो गई, सारा अच्छा प्रोग्राम हो गया। उसके बाद जब सुबह मियाँ के पास हाजिर हुए तो
इरफान भाई हम दोनों गए, मियाँ बैठे हुए थे बनियान के अंदर, और मियाँ को हमने कदम बोसी, सलाम किया, बैठ गए। बोला चाय वाय पी कि नहीं पी? मैंने कहा मियाँ चाय पी ली हमने। और पी लो, चाय आ रही है, बैठो। चाय वाय पिलाई। अब क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? ऐसा आप हुक्म फरमाए। बोला ऐसा है कि आप टोडा राइसिंग जाइए, बाकी लोगों को रहने दो, बाकी आए ना टोडा से, उनको रहने दो, इरफान भाई आप दोनों जाओ टोडा राइसिंग। अब जैसे हम नीचे आए तो अयूब बाबा ने कहा कि भाई खाना खा के जाना, खाना बन रहा है, खाना वाना खा के और आराम से जाना। फिर हमने जाके बोला, मैंने कहा मियाँ वो नहीं जाने दे रहा है अयूब बाबा, वो बोल रहा है कि भाई खाना खा के जाना। और मैंने कहा उनका फर्ज भी बनता है। तो मियाँ ने आप तो जाओ। अयूब बाबा बोल रहे हैं ना कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं आप जाइए। मियाँ ने मजाक में कहा कि भाई ऐसा है कि किन से मुरीद हो आप? अयूब बाबा के मुरीद हो क्या? मैंने मियाँ मुरीद तो आपसे, तो हम हुक्म कर रहे हैं ना, आप जाइए। तो हम आ गए, मोटरसाइकिल पे बैठ गए। इससे साफ जाहिर होता है कि हमें पीर की बात पे तवज्जो रखनी चाहिए। जी, हम आ गए घर पे। घर पे जैसे हम आए तो हम सोचते हुए आए कि यार खाना बन रहा था, सारा प्रोग्राम था, अब दिमाग तो उधर घूम रहा हमारा। लेकिन हमने देखा चलो यार मियाँ ने बोल दिया तो चलना चाहिए। मैंने कहा इसमें भी कोई राज है बुजुर्गों का। जैसे घर पे आए तो इरफान भाई को मैंने कहा पहले घर चलेंगे अपने। बोला चलो। तो घर पे पहुंच गए। हम पहुंच गए तो मेरी घरवाली तो सब्जी बना रही थी गोश्त की, और मेरी भाभी जो है ना वो हलवा बना रही, और मेहमान बैठे हुए रिश्ता करने वाले घर पे बिनाई के। तो उसी दिन बच्चे को नारियल दे गए। मियाँ का भेजने का मकसद ये था जी, बच्चे को देखा उन्होंने और ये कहा कि 5 दिन बाद आ जाना आप और चूड़ी पहना देना। फिर हम 5 रोज बाद गए, रिश्ता पक्का हो गया और शादी हो गई। जी, हैंड टू हैंड मियाँ ने सुन भी लिया। जी बिल्कुल। सुभान। और कोई ऐसी बात? जयपुर दिल्ली रोड पर गांव पड़ता है लोनियावास, वहाँ मियाँ की महफिल थी। तो उस जमाने में क्या है कि एसटीडी से ज्यादातर बात होती थी। तो इरफान भाई ने एसटीडी से फोन लगाया मियाँ को कि हजरत कहाँ हो आप? हम चांदपोड़ में थे। तो मियाँ ने फरमाया कि आप लोग कहाँ हो पहले ये बताओ, आप बताओ कहाँ हो? बोला हम तो जयपुर है मियाँ, और पीरू भाई है, हम दोनों जयपुर में हैं। बोला हम भी जयपुर में? आप जयपुर हो तो हम भी जयपुर में भाई। बोला आप ऐसा करो लोनियावास आ जाओ, शाम को महफिल है। कि मियाँ हम जानते नहीं कौन सी गाड़ी आती है, कि 17 नंबर बस आती है, उसमें बैठ जाना 17 नंबर में, है ना। और वो लोनियावास छोड़ देंगे, एक लड़का आपको मिलेगा ताज लगा के, बड़ के नीचे चाय की तड़ी है, वहाँ खड़ा मिलेगा, वो लेके आ जाएगा हमारे पास। मैंने कहा ठीक है मियाँ। हम पहुंच गए, शाम को खाना हो गया, हल्का जिक्र हुआ, महफिल हुई। तो महफिल चल रही थी, मियाँ गद्दी पे बैठे थे। मेरे दिल में, मैं पानी पीने के लिए खड़ा हुआ, मैंने प्यास लग रही है यार, पीछे मटका रखा हुआ है, पानी पी लेते हैं। मैं गिलास भर के मैंने पानी पी लिया। फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया, मैंने कहा यार मियाँ को भी पानी पिला दे। एक गिलास भर के, दूसरा गिलास लेके मैंने कहा मियाँ को पानी पिला दे। मैंने कहा अपन लेके चले, और फिर मियाँ कह देंगे अरे बैठ जा, आराम से बैठ जा, वापस रख दे। तो मैंने कहा फिर वापस आना पड़ा लो अपन। मैंने कहा अपन बैठ जाओ आराम से। जैसे जाके मैं बैठा, के देखा 2 मरतबा, देख करके मियाँ ने इशारा किया इधर आओ। बुलाया मेरे को नजदीक। बुलाने के बाद में आपने फरमाया कि पानी लेके आ, पानी पिला हमारे। फिर मैंने पानी पिलाया मियाँ को। तो फिर मैं समझ गया, मैंने कहा मियाँ से कोई चीज जो है छुपी हुई नहीं है, मियाँ दिलों का राज जानते। जी हाँ, मियाँ दिलों का राज जानते थे मियाँ तो। जी ऐसे हुआ मियाँ जानते हैं, दिलों के राज जानते हैं। और कोई इसी करामा? साल के वास में मियाँ का प्रोग्राम था। टोडा राइसिंग से 8 किलोमीटर पड़ता है साल के वास, वहाँ प्रोग्राम था। सुब्राती भाई साहब के घर पे, उनका लड़का है बड़े वाला सत्तार भाई, उनके वहाँ प्रोग्राम था। तो मियाँ बैठे हुए थे।
तो हम जैसे जाके मियाँ से मिले तो मियाँ ने कहा और सुनो भाई क्या हाल चाल है। मैंने कहा ठीक है मियाँ, लेकिन आजकल परेशान हूँ मियाँ। मियाँ को मैंने ऐसे ही बोल दिया, क्या बात है। मैंने कहा मियाँ क्या बताऊँ मैं आपको, मैंने कहा बड़ी गुर्बती के आलम से ज़िंदगी गुजर रही है। तो मियाँ मुस्कुराए और मैंने कहा मियाँ अम्मा के गाँव की भाषा में अगर मैं आपने समझाऊँ तो मैंने कहा दिल्ली फकीर से तो रही हमारी आजकल, बहुत परेशान हूँ मैं। तो मैंने कहा बहुत तंग दस्ती के आलम से मामला चल रहा है। बोला कोई बात नहीं, दुआ करेंगे। तो मेरे एक मुकदमा चल रहा था जमीन का, एक पंडित के मेरे, तो 6 साल से वो केस चल रहा था जमीन के बारे में। तो मियाँ ने कहा दुआ करेंगे। तो महफिल हो गई, हल्का जिक्र हो गया, सारा काम हो गया। उसके बाद में मियाँ ने दुआ करी महफिल के बाद में। तो मियाँ की एक लाइन सिर्फ मेरे कान में आवाज आई हल्की सी। मियाँ ने हाथ उठाए और ऐसे मुतवज्जो हुए आसमान नजर घुमा करके, और मियाँ ने फरमाया कि या इलाहुल आलमीन, नेताजी की जो भी दिली तमन्ना है पूरी फरमा, और मुँह पे हाथ घुमा। महफिल के बाद में आपने दुआ करी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 रोज बाद में उनका कोई आदमी आया मेरे पास में जिससे मेरा मुकदमा चल रहा था। उन्होंने कहा कि वो पार्टी आपसे राजीनामा करना चाहती है। मैंने कर लेंगे। तो फिर 2-4 दिन बाद हमारे राजीनामा हो गया। तो उसने मुझे 3 लाख रुपए दिए, और वो पैसे इस ऐसे वक्त में आए कि मेरे हर ज़रूरत जो भी मेरी ज़रूरत थी वो पूरी हो गई मियाँ की दुआ से। जी सुभान अल्लाह। और कोई मियाँ की करामत? मेरे बच्चे की शादी तो हो गई थी, लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके इंटरव्यू के माध्यम से, कि जब बारात वहाँ पहुँची भिड़ाई के अंदर, तो निकाह हो गई। निकाह होने के बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा अब जूती उती पहन ले अपन। तो बार बार मोबाइल की घंटी बज रही थी। तो मैं समझा कि मैंने क्या मालूम किसका फ़ोन आ रहा है। तो 2 मरतबा मैंने हाथ लगा के जेब के और फ़ोन को काट दिया। फिर मैंने जूती पहनी, जूती पहन कर फिर फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते पहले जैसे मैंने नंबर देखे तो मियाँ के नंबर थे। मैंने कहा मियाँ का फ़ोन आ रहा है यार, अपन ने 2 मरतबा काट दिया। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कदम बोसी अर्जो सरकार। कि वालेकुम अस्सलाम, निकाह हो गई भाई। मियाँ ने डायरेक्ट मुझे ये कहा, मियाँ की रोशन ज़मीरी आप देखिए। मियाँ ने फरमाया कि निकाह हो गई भाई। मैंने कहा जी मियाँ। बोला आपने हमारा फ़ोन काट दिया 2 मरतबा। मैंने कहा मियाँ मुझे पता है, मैं जूती वूती पहनने के चक्कर में लग रहा था। निकाह होने के बाद उठ गए लोग। तो मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा मेरे को पता नहीं आपका फ़ोन आ रहा था। बोला नहीं नहीं, इसका जुर्माना होगा आपके। मैंने कहा फरमाइए। क्या आप ऐसा करो, वह गरीब नवाज कमेटी बनी हुई है, उसमें 11,000 रुपये की रसीद कटा लो लंगर में। ठीक है ना, अपना काम हो गया, अल्लाह पाक ने अपना काम करा दिया, आप उसमें ये कर दो। फिर मैंने रसीद कटवाई 11,000 रुपये की वहीं पर कमेटी। जैसे शादी करके घर पहुँचे, बारात घर पे आई, तो उसी नाइट में मेरे को जो है ख्वाब आया। घर पे आने के बाद लेट गया, मैं सो गया। तो मुझे ख्वाब आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि बाजार से मैं जैसे घर पहुँचा तो मेरी घरवाली जो है ना एक बच्चे को गोद में लेके खड़ी है, और बहुत ही खूबसूरत लड़का, और वो एक रेशमी चादर में लिपटा हुआ था। जैसे अपने चादर पेश करते हैं ना मज़ार अक़दस पे, ऐसी चादर के अंदर लिपटा हुआ था वो लड़का। तो मेरी घरवाली ने कहा कि लो इस बच्चे को संभालो, या आपका पोता जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्या? तो मैंने उसको गोद में लिया, देखा, मैंने कहा यार अपने परिवार में इतना खूबसूरत लड़का नहीं क्या। और मैंने कहा क्या मंजर देख रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मेरी आँख खुली तो 5-10 मिनट बाद में फजर की अजान हो गई। अब जब वो लड़का जब हुआ ना, जो मैंने ख्वाब में देखा, मियाँ ने मुझे दिखाया, तो वो का वो बच्चा पैदा हुआ। सुभान में लड़का ही हुआ। वही मंजर सामने आया। वही मंजर मेरे सामने आया जो मैंने ख्वाब में देखा। जी, ये भी बहुत बड़ी नवाजिश थी। जी जी। और कोई मियाँ की ऐसी करामत? रमजान का महीना था जी। तो मेरी एहलिया क्या है कि रमजान से थी,
रमज़ान मैं भी रखता था, लेकिन क्या है कि उस दिन रमज़ान जो है छूट गया। तो मैं जैसे ही मार्केट से घर पहुंचा तो मेरी घरवाली जो है बरामदे में सो रही थी। मैंने उसको जगाया, मैंने कहा भाई मेरे को भूख लग रही। तो उसने कहा कि खाना बाद में खिलाऊंगी मैं आपको, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको। मैंने कहा बोलो। कि जैसे मैं लेटी ना तो मियाँ मेरे ख्वाब में आए। ख्वाब में आए तो मियाँ के हाथ में छड़ी थी, ताज लगा रखा था मियाँ ने, बाल लिबास थे, और मियाँ ने आकर के मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं खड़ी थी जैसे अपने मकान के अंदर ही खड़ी थी क्या ना, ख्वाब के अंदर। तो उन्होंने आकर के मेरे कंधे पे से थप्पी मारी और ये फरमाया कि कैसे हो बेटा, ठीक हो? बोला जी मियाँ ठीक हूँ मैं। तो अब आप देखो कि ना मेरे इस बाहों के अंदर जो अभी भी खुशबू आ रही है, जैसे इतर बिखर गया हो। तो मैंने उसका भी ट्राई करी, मैंने सूंघा तो वास्तव में उसके लिबास पर जो है ना वो कलाई के ऊपर खुशबू आ रही थी, और वो खुशबू काफ़ी दिनों तक उसके कपड़ों पे रही। जी सुभान अल्लाह। जी, ये सरकार का करम है जी सुभान अल्लाह। अब मैं इस इंटरव्यू के आखिर में एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो लाइन है, बुजुर्गान दीन की लाइन है। मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि जो दिल लगाता है वो पास हो जाता है, जो दिमाग लगाता है बुजुर्गों की लाइन में वो आदमी फेल हो जाता है। और बुजुर्गों ने फरमाया भी है, अक्ल आमद दीनो दुनिया सुध खराब, इश्क आमद हर दो आलम कामयाब। ये वो लाइन है। आपको सिलसिले में आने के बाद में क्या सीखने को मिला और हज़रत किबला का असल पैगाम आपको क्या लगा? आपका असल पैगाम यही था कि अल्लाह उसके रसूल का दीन जो है दुनिया में सर बुलंद हो, सिलसिला आगे बढ़े। और मैं तो ये कहूँगा कि इंसान को चाहे वो मियाँ से मुरीद हो, मियाँ के खलीफाओं से मुरीद हो, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा पीर जो है वो कमज़ोर है या हमें उनसे कोई वो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पीर पीर होता है, और जिसको हमने अपना पीर दिल से तस्लीम किया तो सिलसिले का मामला सीढ़ी दर सीढ़ी है। उससे ऊपर भी हमारे जो बुजुर्गान दीन बैठे हैं उनका मामला बहुत आला पैमाने का मामला है। इसलिए आदमी बेत होने के बाद में अपने आप को कभी भी अकेलापन या उसको अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं समझना चाहिए। अपने जो पीर भाई हैं अहले तरीक़त, अपने बिरादर तरीक़त हैं, उनको आप उनमें भी दो तरह के, कुछ खिलाफत याफ्ता है, कुछ खिलाफत जिनको नहीं मिली है, तो खिलाफत याफ्ता पीर भाइयों को क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मियाँ का नाम इस कायनात में कैसे रोशन हो, इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारा नाम हो ना हो इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। सिलसिला कैसे आगे बढ़े, और नामो नमूद के लिए हमको सिलसिले का काम नहीं करना चाहिए। काम तहे दिल से ये करना चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं हम वो सब मियाँ के लिए कर रहे हैं, मियाँ के हुक्म से कर रहे हैं। और मियाँ के लिए जो सदक दिल से और सच्चे दिल से जो काम किया जाएगा उसका अजर दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। और ऐसे पीर भाई जो खिलाफत याफ्ता नहीं है या जिनको अभी खिलाफत इजाज़त नहीं मिली है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि उनको ये सोचना चाहिए कि जितने भी हमारे खुलफाए हजरात हैं और जिनको मिल चुकी है खिलाफत, समझो वो हमको ही मिल गई, कोई बात नहीं, वो भी तो सिलसिले का काम कर रहे हैं। और है क्या, वो भाई मियाँ की तरफ से उनको खिलाफत अता हो गई तो ऐसी बात थोड़ी है। हमारे पीर भाई भी हमारे बराबर के हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको दिल से लगाना चाहिए, जो मुरीद है मियाँ के, जो हम सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। पीर भाई हों, पीर बहनें हों, सबको इखलास से मोहब्बत से रहना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और सिलसिले के अंदर कभी भी इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए जिससे मतलब जो है सिलसिले में फूट हो या लोगों के दिलों पर ठेस पहुँचे या आगे जाके हमें कोई दिक्कत परेशानी हो, सिलसिले के अंदर खटास महसूस करे आदमी।
اور کبھی بھی ایسی بات کسی کو نہیں بولنا چاہیے جس سے سامنے والا شرمندہ ہو۔ جی، نئے جڑنے والے جو ہمارے اہل سلسلہ حضرات ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نئے جتنے بھی لوگ جڑنے والے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد سے رابطہ قائم رکھیں۔ جس طرح ہماری آپ لوگوں کی اپنے پیر و مرشد سے گرفت مضبوط ہوگی، سلسلے میں آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جی بے شک، یہ بات شجرے میں بھی لکھی ہے۔ جی، عام لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو سلسلے سے وابستہ نہیں ہے، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ ان کو بھی سلسلے سے جڑنا چاہیے۔ جی یہ میں انٹرویو کے ذریعے نہیں بتا رہا ہوں، یہ تو قرآن بتا رہا ہے۔ جی، یہ تھے ٹوڈا رائے سنگھ، ضلع ٹونک، راجستھان سے صوفی پیر محمد صاحب رزاقی، جنہوں نے حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بے شمار کرامتوں اور اپنے تاثرات سے ہمیں نوازا، اور ہم سب اہل طریقت کو ایک خوبصورت پیغام دیا۔ اللہ رب العزت آپ کے اس پیغام پر ہم سب کو باعمل ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ کہ پروگرام کو پورا وقت دے کر آپ سب نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ آپ کی اور ہماری محبتیں اسی طرح قائم و دائم رہے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ ملتے ہیں اگلے جمعرات پھر سے کسی خاص نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔